Hello students, good morning. Welcome to Gyanpit Odisha. So today we will be learning one of the most important chapters of class 10th history, that is First World War. So today we will be learning about the causes of the First World War. So first we will see the introduction. In 1914, a war began in Europe which soon engulfed most of the entire world with the battles fought in Europe, Asia, Africa and the Pacific. तो से कौन 1914 रे यूरोप रे गोटे वार बिगैन है जोटा कि कौन है सबुजा नेशन को ता सहित एनगल्फ करदेला. This was different from the wars fought earlier in terms of its scale and its repercussions. तो सी कौन ये जो वार्टा फट है एवं ए वार्टा बाकी सब युद्ध जो जगह आगु हो सारा से वार तो बहुत ही डिफरेंट. यार रिजल्ट भी बहुत ही डिफरेंट थिला. ए वार स्केलटा ए वार्टा जो रेंज रहा यार एड़ा भी बहुत ही डिफरेंट थिला. It was fought on a worldwide scale and affected almost all the countries of the world. ए वार रे most of the countries of the world participate करथिले तो ये बहुत ही countries को affect करला भी. During this war, new methods of defense and destructions were used. तो सी कुछ ए war समय रे बहुत ही new techniques defense रा और destructions रा use हेथिला. Moreover, in the earlier wars, the civilian populations were not generally involved. Earlier wars रे आमरो civilians माने involved हो नथले. But this war was fought by the people as a whole. But ए war रे civilians माने मध्य participate करथिले. Thus, the war marked the turning point in the history of the world. The history ର turning point गोटे थिला First World War. Because of the unprecedented extent of its spread, impact and damage and its total nature, it is known as the First World War. तो इमिते एक्सटेंट रे वार टा स्प्रेड हवा तार इफेक्ट पड़े बाकी सब कंट्री उपरे तो एटा फर्स्ट टाइम हेतला गोटे हिस्ट्री रे तो सेथमे नाडा आमे दिया हिची कोन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो आम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉजेस कौन कौन पढ़िया. नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म फर्स्ट कॉज होची फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म. ते कौन कहूँ ना नेशनलिज्म रेफर्स टू द सेंस ऑफ यूनिटी फेल्ट बाय द पीपल हु शेयर ए कॉमन हिस्ट्री लैंग्वेज एंड कल्चर. तो सी कुछ नेशनलिज्म हूँ गोटे फिलिंग जोटा कि पीपुल मानकर भितर आम पाइबा जो कि कौन था ना ए पीपुल मान भर जो मैंने कॉमन हिस्ट्री शेयर करते कॉमन लैंग्वेज कॉमन कल्चर शेयर करते से भर आम नेशनलिज्म फिलिंगटा पाइबा. In the latter half of the 19th century, this feeling of unity turned into extreme pride. तो सी कुछ 19th century लेटर हाफ रे कौन है ये जो यूनिटी रो फीलिंग टा प्राइड गोटे गर्वर रे चेंज है गोटे लोक मानकर गर्व अनुसार से चेंज होती. which made the people of many countries believe that their country is superior to the other countries. हेले सेमानर कौन गर्व थिला जे तांका देश बाकी देशटू सब शक्तिशाली. This led to the development of aggressive nationalism in Europe. तो ये जो nationalism feeling जो कौन है ए feeling टा धीरे धीरे कौन है aggressive nationalism रे बदलला यूरोप रे लोक मानक भितरे. तो aggressive nationalism कौन सी कुछ aggressive nationalism meant love for one's own country and hatred of other countries. तो खाली nationalism कौन nationalism होची love for one's own country but aggressive nationalism कौन ना love for one's own country ता सहित कौन ना hatred for other countries माने निज देश को भल पाया अन्य देश सहित शत्रुता हवा एडा हला aggressive nationalism. खाली nationalism कौन ना निज देश को भल पाएगा. Each nation thought about its own national interest and did not care for the interest of other nations. तो प्रति देश कौन गला निज निज विषय भाविला निजर केमिति भल हम निजर डेवलपमेंट विषय भाविला अन्य देश विषय किसी भाविला नहीं. फॉर एग्जांपल फ्रांस वांटेड टू गेट बैक इट्स प्रोविंसेस ऑफ एल्सेस एंड लोरेन फ्रॉम जर्मनी. तो कौन है एग्जांपल कौन देछि गोटे ना फ्रांस कौन चाहिला ना तार प्रोविंसेस जाक माने तार देश जाक जोटा कि एल्से एंड लोरेन जर्मनी रो से वापस पाई जोटा कि जर्मनी ताडू हड़प नहीं हेतला. सिमिलरली Italy wanted to get back the territory of Trentino Triste from Austria and Balkan states. जिमिति फ्रांस तार प्रोविंसेस कुड एल्सेस एंड लोरेन चाहूला वापस कुड जर्मनी डू सिमिति ही इटली कौन चाहूला ना टेरिटरी ऑफ ट्रेंटिनो ट्रिस्टे फ्रॉम ऑस्ट्रिया
and Balkan states like Serbia wanted that their fellow nation Slavs who lived in other states should come together to form a greater Balkan state. तो इटली कौन चाहूला ना इटली चाहूला वापस तार कौन ट्रेंटिनो ट्रिस्टे फ्रॉम ऑस्ट्रिया जोटा ऑस्ट्रिया नहीं है ताड़ू से वापस चाहूला आउ कौन चाहूला ना आज जमीती कि बाल्कन स्टेट्स अच्छे लाइक सर्बिया सेट्र जो लोक मैंने रोते जहाँ को कि आम स्लैब्स बोली कहे से जमी यूनाइट होगी गोटे ग्रेटर बाल्कन स्टेट फॉर्म करंतु These countries developed expansionist policies in the name of nationalism. तो आंके nationalism ना रे कौन कले ना सो expansionist policies use कले जादरे कि तांकर देशटा कौन हब expand हब. Therefore, military strength become synonymous with national prestige and every country began to increase her military power. तो कौन हला सब देश निज निजर मिलिट्री पावर बढ़ाया पे चाहिए जहाँद्वारा कि कौन करे अलग अलग नेशन टू युद्ध करिकी सब तांकर राज्य हड़पी नेबे जहाँद्वारा कि तांकर नेशन एक्सपैंड हब. This nationalism also led to the rise of imperialism. तो ये जो aggressive nationalism टा कौन हला लेड कला काकू imperialism को. तो imperialism कौन ना imperialism refers to the state policy or practice by which a powerful nation establishes its control over another country either by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control. तो imperialism कौन ना से कुछ imperialism हो गोटे state policy by practice जो थे गोटे powerful nation कौन करची तारा कंट्रोल एस्टाब्लिश करची अलग कंट्री उपरे डायरेक्टली थ्रू टेरिटोरियल एक्विजिशन माने डायरेक्ट युद्ध करिकी मिलिटरी पावर यूज करिकी नॉल तो बाय गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर दैट कंट्री नॉल तो इकोनॉमी थ्रू रे पॉलिटिकल कंट्रोल थ्रू रे से देश को निजरा बनौथिला. Once conquered, this country was claimed as a colony. तो जदि गोटे पावरफुल नेशन आ गोटे नेशन रो गोटे स्टेट को कनक्यूर कर दोतला सेटा को तापर कॉलोनी बोली कहतला से पावरफुल नेशन रा. These colonies were governed and administered by the imperial nation. तो imperial nation टा कोडा जोटा कि पावरफुल नेशन टा से नेशन रा जो जाको से कनक्यूर करथला सेटा को हमें कॉलोनी बोली कहले हेले ए इंपीरियल नेशन एबे से कॉलोनी को गवर्न करथला थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स और ए पपेट गवर्नमेंट. तो तार से पावरफुल नेशन रो केते रिप्रेजेंटेटिव आसी से कॉलोनी को पपेट गवर्नमेंट टाइप रो सेठी तांके कोन गवर्न करथिले. The imperial nations exploited the resources of these colonies for their own economic interest. Colonies provided raw materials, cheap labor, agricultural land and trading ports to the imperial nations. तो कौन मतलब ये जो imperial nations जगह कौन करतिले जहाँ सब resources रोतला से जो colonies रो से resources सब को exploit कर दोतले तांकड़ो सब कौन cheap raw material, labor सब नहीं कि निजर product बनोतले तांके. By the end of 19th century, England and France had built up a huge colonial empire in Asia and Africa. तो से कुछ by the end of 19th century end आड़को कहला ना यूरोप ना इंग्लैंड और फ्रांस कौन करतिले ना ह्यूज colonial empire build करतिले कोड कोडी एशिया और अफ्रीका रे. British imperialism was focused on maintaining and expanding trade by exploiting the resources of its colonies. The British imperialism एटा कौन ये जो state British imperialism state policy कौन ना was focused on maintaining and expanding trade. तो सी कौन करथला ये जो colonies जगर resources सब निजे निजे यूज करिकी तार ट्रेड को एक्सपैंड करथला हेले से कौन कौन colonies जाउ सेथरे इंडिया आमर कंट्री श्रीलंका म्यांमार इजिप्ट South Africa, Caribbean islands and many parts of Africa. तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म रे को कॉलोनी जाउतला इंडिया श्रीलंका म्यांमार इजिप्ट साउथ अफ्रीका कैरिबियन आइलैंड्स और अलग केते पार्ट्स अफ्रीका रो ठीक अछि. Britain's imperial power was reinforced by her powerful and the world's largest navy. तो ये जो ब्रिटेन रो पावर टा किमिति बढ़ला रेनफोर्स माने ता पावर टा बढ़ला किमिति स्ट्रांग हैला by her powerful and the world's largest navy. तो तार जो मिलिटरी पावर थिला सबुठ पावरफुल थिला आ तार नेवी जो थिला सेटा वर्ल्ड्स रो सबुठ लार्जेस्ट नेवी थिला. Some other countries of the world like Germany, Italy, Russia and Japan also wanted to increase their sphere of influence and create their colonies in Asia and Africa.
सेमती जर्मनी इटली रशिया जापान भी कौन चाहूले ना एशिया अफ्रिकार निजर गोटे गोटे कॉलोनी बनातु बोली। These colonies were essential for their progress as they could provide raw materials for their industries and markets for their finished products. तो सेमाने कौन भी चाहूले एशिया अफ्रिका निजर कॉलोनीज बनवाई कौन से बेनिफिट मिलता कौन ना ये कॉलोनीज जगह एथि एसेंशियल थे कि ये जो कॉलोनीज सब रिसोर्सेज जोटा कि आम रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चरल लैंड चीप लेबर सब यूज करके मार्केट इंडस्ट्री को बढ़ाते इकोनॉमी को बढ़ाते ट्रेड को एक्सपांड करते। Besides, acquiring colonies would add to the power and prestige of these countries. या सहित कौन होता से कौन भावते पावर और प्रेस्टीज बढ़े द्वारा लिखि। This led to a clash of interest among these countries. तो ब्रिटिश चाहूला जर्मनी चाहूला इटली चाहूला जापान चाहूला तो समस्त चाहते कि एशिया अफ्रिकार कौन कॉलोनीज बनातु निज निजर तो से कौन है एम भितर डिसइंटरेस्ट फॉर्म है तो एम भितर मतभेद स्टार्ट है क्लैश है। The European powers began to scramble for expanding their economic and political empire. तो ये जो यूरोपियन पावर्स कौन गला began to scramble तो से scramble है कि तार इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पायर को बढ़ारे चेष्टा करला लगिला। Thus, aggressive nationalism and fierce economic competition filled the atmosphere with fear, apprehension, mutual hatred, and international tension. People felt convinced that international problems could only be solved through militarism. तो सी कह ये जो एग्रेसिव नेशनलिज्म और फियर्स कंपटीशन जो ब्रिटिश जर्मनी इटली और जापान भितर कौन है ना आटमोस्फियर को गोटे भयर सृष्टि कला कौन भय ना युद्ध हबार भय लोक भाविले ये जो डिसइंटरेस्टा क्लैश ऑफ इंटरेस्टा क्या द्वारा जीव ना मिलिटरिज्म द्वारा जीव माने युद्ध द्वारा ही जीव बोली से भाविले। रेस फॉर आर्मामेंट्स सेकेंड कज है कौन ना रेस फॉर आर्मामेंट्स। फर्स्ट कज आम कौन देखले नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म बोले कौन जो कहूँ लव फॉर वन्स ओन कंट्री बट एग्रेसिव नेशनलिज्म कौन है ना लव फॉर वन्स ओन कंट्री ता सहित हेट्रेड फॉर अदर कंट्री। तापर आम पढ़ले इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म कौन पढ़ले आम ना इंपेरियलिज्म कौन है गोटे पावरफुल नेशन गोटे अलग नेशन उपर कनक्वेयर करता निजर कॉलोनी हिसाब से रखुला आउ से कॉलोनी रिसोर्सेस सब यूज करके निजर बेनिफिट से पाउला। रेस फॉर आर्मामेंट्स the mad race for armaments which began soon after the Franco-Prussian War was one of the reasons which led to the First World War. आउ गोटे कज कौन सी कहूँ ना रेस फॉर आर्मामेंट्स। आर्मामेंट्स माने मिलिटरी इक्विपमेंट्स बा वेपन्स। तो सी कहूँ द मैड रेस फॉर आर्मामेंट्स माने वेपन्स began soon after the Franco-Prussian War. Franco-Prussian War पर ए जो रेस फॉर आर्मामेंट्स टा राइज है was one of the reasons। एटा गोटे रीजन जोटा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार है जो एवरी मेजर पावर बिगैन स्टॉक पाइलिंग आर्मामेंट्स इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। तो सब गोटे गोटे मेजर पावर माने मेजर नेशन माने कौन कले ना सब आर्मामेंट्स को स्टॉक कर रखिले कौन कु ना रे ना निजर सेल्फ डिफेंस पे से यूज करे कहीकि आ वर्ल्ड पीस में यूज हम बोलिकी कहीकि निजे निजे सब स्टॉक कर रखले आर्मामेंट्स को। As a result, if one country increased its armaments, other countries were compelled to do the same. तो जो गोटे नेशन तार अधिका हो आर्मामेंट्स नंबर हेले आउ गोटे कंट्री भी चाहूँ तार भी हो जाऊ आर्मामेंट्स नंबर अधिका। इट फिल्ड एटमोस्फियर विथ फियर एप्रिहेंशन एंड म्यूचुअल हेट्रेड। तो या जो कौन है या जो भी कौन आटमोस्फियर भय सृष्टि है लोक मध्य भय सृष्टि है आउ कौन है म्यूचुअल हेट्रेड फॉर्म है गोटे नेशन आउ गोटे नेशन प्रति हेट्रेड है। In order to protect her colonies in Africa and a few islands in Pacific, Germany began to build a powerful navy with a view to achieving parity with Britain in। तो सी कौन ला जर्मनी कौन गला गोटे पावरफुल नेवी क्रिएट कला आफ्रिकार जमी कॉलोनीज जाक ता हाथ न जाओ बोलिकी। By 1914, Germany had left Britain and France far behind in the production of iron and steel and in many other manufactures। तो कौन ला by 1914 कौन कला जर्मनी had left Britain and France far behind in the production of iron and steel। तो सी कौन कला तार आयरन और स्टील रो प्रोडक्शन टा बहुत बढ़ेला जे फ्रांस और ब्रिटेन मध्ये पछर रही गले and in many other manufacturers iron और बाकी स्टील और बाकी अदर भी जिनसे मैन्युफैक्चर रे। One of its ships, the Imperator, built in 1912 was the largest in the world।
तो सी 1912 रे गोटे शिप बिल्ड कला जोटा कि द इम्परेटर जोटा कि सेते लार्जेस्ट थिला वर्ल्ड रो सबुठो द जर्मन्स डग द किल कैनल डीपर was so that battleships could enter its waters तो सी कहूँ द जर्मन्स डग द किल कैनल गोटे कैनल टाकू खोलिले जहाद्वारा कौन हम जो बैटलशिप जाक वाटर भितर को जापर ब्रिटेन एंड फ्रांस वर कंसर्न विथ जर्मनीज ग्रोइंग मिलिटरी स्ट्रेंथ तो ब्रिटेन और फ्रांस पछुर रही कौन कहले ना कंसर्न कौन हेले जर्मनी ग्रोइंग मिलिटरी स्ट्रेंथ में कंसर्न हेले This led to a fierce competition along the European countries and gave rise to the race for armaments. तो इसमें ब्रिटेन और फ्रांस मध्य चाहिए तांकर आर्मामेंट सब बढ़ू बोलिकी इक्विपमेंट्स वेपन्स थर्ड रीजन कौन कहले से ना डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप्स देयर वर टू काइंड्स ऑफ स्टेट्स इन यूरोप इन द अर्ली 20th century तो सेतबे कौन थिला ना अर्ली 20th century रे यूरोप रे दी प्रकार स्टेट थिला कौन कौन ना On the one hand, there were single nation states like France, Holland and Germany whose national identities were based on their common language and traditions. तो गोटे कौन थिला गोटे पटे ना सिंगल नेशंस जाक जोटा कि जेमिति कि फ्रांस, हॉलैंड और जर्मनी whose national identities were based on their common language, common culture माने common language बा common culture द्वारा तांकर आइडेंटिटी थिला तापर कौन अदर हैंड रे were imperial states like Austria-Hungarian Empire and Russian Empire. आउ गोटे पटे कौन थिला ना Austria-Hungarian Empire और Russian Empire. तो इधर कौन थिला ना the Austria-Hungarian Empire was ruled by the Habsburg dynasty of Austria and included in its territory Hungarian, Serb, Bosnian and Croat population who spoke different languages and had different cultural traditions. तो आउ गोटे पटे जो थिला ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर व रशियन एम्पायर ए ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर कौन होतिला ना वाज एटा का द्वारा रूल होतिला ना हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑफ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया रो हैब्सबर्ग डायनेस्टी को रूल करथिले आ कोन होला इतरे इंक्लूडेड कोन रहला इतरे को देश ना हंगेरियन सर्ब बॉस्नियन आ क्रोट पॉपुलेशन जे की डिफरेंट लैंग्वेज कथा होतले आ डिफरेंट तांकर कल्चरल ट्रेडिशन मध्ये डिफरेंट थिला तो गोटे प्रकार स्टेट कौन है जोटी की कल्चरल ट्रेडिशंस आ लैंग्वेज कॉमन रोतला आउ गोटे हला जोटी की डिफरेंट रोतला कल्चरल आउट ट्रेडिशन Germany entered into an alliance with Austria-Hungary in 1882. Italy joined the alliance and it came to be known as the Triple Alliance. तो कौन हला जर्मनी एंटर्ड इनटू एन अलायंस विथ ऑस्ट्रिया-हंगरी ए जो ऑस्ट्रिया-हंगरी थिला ए अलायंस को जर्मनी मध्ये एंटर कला आउ कौन हला ना इटली मध्ये जॉइन कला जा द्वारा कौन हला जर्मनी ऑस्ट्रिया-हंगरी और इटली एरा मिसी गोटे ट्रिपल अलायंस फॉर्म हला आफ्टर द डेथ ऑफ बिस्मार्क France was able to establish friendly relations with Russia and England. तो बिस्मार्क रो डेथ हला परे कौन हला ना फ्रांस कौन हला ना फ्रेंडली रिलेशन बनेला का सहित रशिया आउ इंग्लैंड सहित द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड द टेरिटोरीज पॉपुलेटेड बाय Polish, Ukrainian, Turkish and Mongol populations. तो रशियन एम्पायर को टेरिटोरीज जगह जाउतला ना Polish, Ukrainian, Turkish आउ Mongol populations. The three countries entered into triple entity in 1907 to counter the triple alliance. तो गोटे आम ट्रिपल अलायंस फॉर्म होता कौन से किए थे जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ताकि गोटे अलायंस फॉर्म कले मैंने गोटे कंबाइन होगी गोटे ग्रुप फॉर्म कले तो आपको काउंटर करने कौन है ना फ्रांस रशिया और इंग्लैंड आउ गोटे ग्रुप बनले जार ना हूँ ट्रिपल एंटिटी तो से फर्स्ट ग्रुप ना कौन थी ट्रिपल अलायंस जो किए थे जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली तो ट्रिपल आउ गोटे ग्रुप फॉर्म है काउंटर करने जाना है ट्रिपल एंटिटी ए ग्रुप ना कौन है ना एक माने एक ग्रुप रे किए थे रशिया फ्रांस आउ इंग्लैंड Thus Europe was divided into two hostile camps. तो यूरोप रे जेहेतु सब कंट्री जाक अलग अलग ग्रुप फॉर्म कले तो दीटा हॉस्टाइल कैंप्स फॉर्म हला Britain had created a vast British empire by acquiring colonies in Asia and Africa. तो ब्रिटिश कौन करथिला ना ब्रिटेन कौन करथिला ना ब्रिटिश एम्पायर गोटे फॉर्म कर देथिला पूरा बड़ा ब्रिटिश एम्पायर कुडी एशिया और अफ्रीका रे कॉलोनीज एक्वायर करकी It grew rich from its sources in trade in foreign resources, markets, territories and people.
तो सी बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता का द्वारा ना सी तार फॉरेन रिसोर्सेस मार्केट सब यूज करके other countries of the world like Germany, the Netherlands, Italy and the USA to wanted to acquire colonies in Asia and Africa. जेतले ब्रिटेन एशिया अफ्रिका रे colonies तार acquire करिकी जेतले एते रिच हे पल्ला तो कौन हला सेतले ना जर्मनी, नेदरलैंड्स, इटली और यूएसए मध्य चाहिए कि एशिया अफ्रिका रे colonies सब acquire करिया पे. This led to a scramble for colonies and therefore rivalries and wars. जेतले समस्त गोटे जिनस चाहिए तो युद्ध हबाड़ा निश्चित. तापर कौन आसला ना rivalries between nations happen not just for colonies but for the colonial trade and trade routes as well. तो खाली कॉलोनी एक्वायर करे पे नहीं colonial trade पे आ colonial routes पे मध्य जाद्वारा कि ट्रेड हे पारियो से पे मध्य rivalry हला. These rivalries created suspension, tensions and wars which finally culminated in the First World War. तो सी कौन कोसी ए जो rivalries जाका धीरे धीरे First World War रे रूप नेला. फोर्थ रीजन है साराजेवो क्राइसिस जोटा गोटे इमीडिएट कॉज कौन साराजेवो क्राइसिस या पर एग्जाम रे क्वेश्चन मध्ये आसे. द आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड द हेयर टू द थ्रोन ऑफ द ऑस्ट्रिया हंगरी वाज assassinated at the Sarajevo capital of Bosnia on June 28 1914. तो सी कोची आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड ये कौन थिले ना ऑस्ट्रिया हंगरी राजा थिले जे के असैसिनेट हे गेले कोडी ना साराजेवो रे जोटा कि होजे बॉस्निया रा कैपिटल ऑन जून 28 1914. द असैसिनेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड ब्लैक हैंड और यूनियन ऑफ डेथ. एटा गोटे ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेटली कोन प्लान करथला जार नाम होचे ब्लैक हैंड और यूनियन ऑफ डेथ formed by extremist Serbian nationalists. हेले ए ग्रुप टा ए जो ऑर्गेनाइजेशन टा किए फॉर्म करते माने कु पीपल थिले थरे ना एक्सट्रीमिस्ट सर्बियंस माने थिले थरे whose aim was to unite all Serbians into a single Serbian state. जार एम थिला जे सबु सर्बियंस माने को माने सबु सर्बियर पीपल माने को यूनाइट करिके गोटे सिंगल सर्बियन स्टेट बनया पे. Austria served an ultimatum on Serbia on July 23 making 11 demands. तो ऑस्ट्रिया कौन गला ना गोटे अल्टीमेटम सर्व कला सर्बिया उपरे बाय मेकिंग 11 डिमांड्स से 11 टा डिमांड कला सर्बिया को कौन कौन ना सर्बिया एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स एक्सेप्ट दोज दैट वुड हैव लेड टू द लॉस ऑफ सॉवरेनिटी. तो सी सेथरु 11 टा डिमांड रो बहुत सारा डिमांड मानला एक्सेप्ट कला बट आउ केतरा एक्सेप्ट कलानी जा द्वारा कि तार माने सॉवरेनिटी माने तार गोटे पावर तार गोटे ना जोटा कि पळेबनी जेमिति. ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वार ऑन सर्बिया ऑन जुलाई 28. तो जेहेतु सर्बिया मानलानी केतरा डिमांड तो ऑस्ट्रिया कौन गला वार डिक्लेयर करदेला कापरे ना सर्बिया उपरे केबे ना जुलाई 28 1914 रे. तो फर्स्ट जून 28 रे कौन हला ना असैसिनेशन हला तापरे ऑस्ट्रिया कौन गला सर्बिया उपरे केतरा डिमांड्स कला जोरा कि सेतुर केतरा डिमांड्स एक्सेप्ट कला केतरा एक्सेप्ट कला सेतमे कौन हला ना ऑस्ट्रिया वार डिक्लेयर करदेला कापरे सर्बिया उपरे जुलाई 28 1914 रे. रशिया स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ वार टू सपोर्ट सर्बिया. तो रशिया कौन गला इतरे सर्बिया को सपोर्ट कला. ऑन अगस्त 1 1914 जर्मनी डिक्लेयर्ड वार ऑन रशिया. अगस्त 1 1914 रे कौन हला ना जर्मनी वार डिक्लेयर कला कापरे ना रशिया उपरे. एंड ऑन अगस्त 3 ऑन फ्रांस आ कौन हला जर्मनी अगस्त 1 रे रशिया पर वार डिक्लेयर कला और अगस्त 3 रे फ्रांस उपरे वार डिक्लेयर कला. तो जर्मन ट्रूप्स मार्च इनटू बेल्जियम. द जर्मन ट्रूप्स मैंने कहला बेल्जियम को मार्च करी गले आउ टू प्रेस ऑन टू फ्रांस ऑन अगस्त 4 एंड ऑन द सेम डे ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी. तो कहला ना अगस्त 4 रे से मैंने माने कौन जर्मनी रे ट्रूप्स जाक सब फ्रांस को गले आउ सेम डे भी ब्रिटेन कहला जर्मनी उपरे वार डिक्लेयर करला. तो फास्ट कौन हला ना आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड जे कि हेयर थिले ऑस्ट्रिया हंगरी रो तांकर असैसिनेशन हैला किए कले माने ना एक्सट्रीमिस्ट सर्बियंस माने गोटे और ग्रुप फॉर्म कले जोटा कि ब्लैक हैंड और यूनियन ऑफ डेथ बोली कहूचे आमे एले से माने कम में करथले तांकर एम थिला कि तांके सब सर्बियंस माने यूनाइट करी गोटे सिंगल सर्बियन स्टेट फॉर्म करी. तापर कहला एडा हैला परे असैसिनेशन ऑस्ट्रिया कौन कला सर्बिया ऊपर 11 टा डिमांड्स मांगला जो थी कि सर्बिया केतरा डिमांड्स मानला केतरा डिमांड्स मानलानी. तो सेतमे कहला ऑस्ट्रिया कौन गला ना जुलाई 28 1914 रे से वार डिक्लेयर कला सर्बिया उपरे.
जो थे कि रशिया तापर सर्बिया को सपोर्ट कला अगस्ट 1 1914 रे कौन है ना जर्मनी रशिया उपरे वार डिक्लेयर कला आउ फ्रांस उपरे अगस्ट 3 रे डिक्लेयर कला तापरे जर्मन ट्रूप्स माने अगस्ट 4 रे बेल्जियम फ्रांस को गले वार पे आ से दिन ही अगस्ट 4 रे कौन ना ब्रिटेन जर्मनी उपरे वार डिक्लेयर कला मेनी अदर कंट्रीज सून एंटर द वार आउ बाकी अलग भी बहुत सारा कंट्री वार भितर एंटर कले कौन कौन जापान डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी टू कैप्चर जर्मन कॉलोनीज इन द फार ईस्ट तो जापान कौन कला सी जर्मनी ऊपर वार डिक्लेयर कला जमी ब्रिटेन डिक्लेयर कला वार सेमती जापान मध्य वार डिक्लेयर कला कापरे जर्मन ऊपर टू कैप्चर जर्मन कॉलोनीज इन द फार ईस्ट तो फार ईस्ट रे जो जर्मन कॉलोनीज थिला से सब एक्वायर करिया पे जापान वार डिक्लेयर कला कापरे जर्मनी ऊपर टर्की एंड बल्गेरिया जॉइंड ऑन द साइड ऑफ जर्मनी तो टर्की और बल्गेरिया कौन कले ना जर्मनी रो साइड नेले इटली रिमेन न्यूट्रल फॉर सम टाइम बट जॉइन द वार अगेंस्ट जर्मनी इन 1915 ब्रेकिंग द ट्रिपल अलायंस तो इटली कौन होला ना सी वार डिक्लेयर कला का अगेंस्ट जर्मनी रे 1915 रे ब्रेकिंग द ट्रिपल अलायंस तो इडा में कौन पड़तले ट्रिपल अलायंस फॉर्म हेतला का भितरे ट्रिपल अलायंस का फॉर्म होता जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली तो मैंने गोटे सेम ग्रुप थिले जे कि अलग अलग ग्रुप सहित लड़े बट ए ग्रुप टाक ब्रेक करके इटली कौन कला जर्मनी अगेंस्ट ही वार डिक्लेयर कला तो गोटे गोटे ग्रुप रे कौन रहा ऑस्ट्रिया रहा ऑस्ट्रिया जर्मन आउ कौन इटली इटली नहीं सॉरी ऑस्ट्रिया जर्मन आउ जापान रहा आउ गोटे पटे सब रहा बाकी फ्रांस ब्रिटेन ये सब रहा ठीक अच्छे ब्रिटेन फ्रांस रशिया एंड देयर एलाइज वर कॉल्ड द एलाइड पावर्स तो इथरे कौन ना ब्रिटेन फ्रांस और रशिया और बाकी तांगर एलाइज जाको को एलाइड पावर्स बोली कहला व्हाइल जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड देयर एलाइज वर कॉल्ड द सेंट्रल पावर्स जो आउ गोटे ग्रुप रहा जोटा कि जर्मनी ऑस्ट्रिया और बाकी तांगर एलाइज से मानकु सेंट्रल पावर बोली कहला फर्स्ट आमर थिला ट्रिपल अलायंस ट्रिपल एंटिटी एबेडी कौन फॉर्म है आउथरे एलाइड पावर्स आ गोटे सेंट्रल पावर्स एलाइड पावर्स किए रहे ब्रिटेन फ्रांस रशिया और तांकर एलाइज आउ सेंट्रल पावर किए रहे जर्मनी ऑस्ट्रिया और तांकर एलाइज द वार वाज फॉट इन मेनी डिफरेंट एरियाज कॉल्ड फ्रंट्स द वार जा बहुत अलग अलग जगह लड़ाई है जोटा कि ना थिला कौन फ्रंट्स बोली There was a western front between Germany and northern France and an eastern front between Germany and the Russian forces. तो गोटे वेस्टर्न फ्रंट थिला जोटा कि जर्मनी और नॉर्दर्न फ्रांस मझे थिला आ गोटे ईस्टर्न फ्रंट थिला जोटा कि जर्मनी और रशियन फोर्सेस मझे थिला देयर वाज फाइटिंग एट सी एंड इन द मिडिल ईस्ट वेयर एलाइड पावर्स अटैक द ऑटोमन एम्पायर तो गोटे समुद्र रे भी युद्ध लागिथिला इन द मिडिल ईस्ट रे जोटा कि एलाइड पावर्स मैंने कौन गले ना ऑटोमन एम्पायर उपरे वार डिक्लेयर करले तांकू अटैक करले तो स्टूडेंट्स भल आशा करछि आज वीडियो आपन भल लागि थियो वीडियो को लाइक करंतु अधिक अधिक शेयर करंतु आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु जा द्वारा कि आमे अधिक अधिक मोटिवेट हे पारियो आपन मन बहुत सारा वीडियोस मध्य पके पारियो तो आज पे एतिकी थैंक यू।